हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। माय नेम इज़ लोहित जिंदल एंड आई एम मास्टर टीचर here at Vedanta Olympiad School. I teach for mathematics Olympiads. I guess many of you must be knowing that already. ठीक है, so guys, I have done my BTech from IIT Bombay and I have been teaching for the past 8+ years in mathematics, mainly for JEE and Olympiads. So what I've come today with a different angles to combinatorics. ठीक है, so I want to show you some 1 or 2 questions maybe. ठीक है, which such questions which we can do with multiple methods. Like I will give you 2 methods actually. First will be some standard way and the second method would be a different way which will reduce your solving time drastically and it will be some different angle to the question. ठीक है, so I will be coming to you with questions from combinatorics. Okay, हम combinatorics के ऐसे questions देखेंगे जो standard way में भी आपको मे बी पता होगा कैसे करने, and I will show you that method also. And after that मैं आपको show करूंगा कि वो किसी easy way से कैसे हो सकते हैं, but just tweaking the thinking logic और method a bit. ठीक है, कुछ चीजें ऑब्जर्व करके भी हो जाती हैं, पता लग जाती हैं हमें, और कुछ चीजें हमें पता लगती हैं अगर आप उसको थोड़ा ध्यान से अलग एंगल से सोचते हो क्वेश्चंस को. दैट्स व्हाई आई name this session as alternate angles to combinatoric questions. Okay, all right guys, तो एक काम करते हैं, let's start off with our first question. Okay, I'll solve that question with both the methods. Okay, first with some standard method, okay, which you might have learned somewhere, okay, in your preparation for IOKM, and after that a different angle on how to solve it. Okay, all right guys, let's see the first question of the day. What does the question say? Question में कहा जा रहा है let S be the set of natural numbers whose digits are chosen from 1, 3, 5 and 7 and such that no digits are repeated. ठीक है, all the natural numbers whose digits are chosen from 1, 3, 5, 7 such that no digits are repeated. First part is find mod S, which means actually in this case number of elements in S, which means first part से हमें पूछा जा रहा है कि कितने numbers होंगे ऐसे. Okay, how many numbers can be formed, how many natural numbers will be there जो 1, 3, 5, 7 से ही बन रहे हैं such that no digit is being repeated. Okay, so that is our first part. तो first part is quite easy, I think सबने किया हुआ ऐसा कुछ, right? That is quite easy. We'll be just be making cases. Okay, first case. Okay, let me write here. Oh, sorry guys. Okay, so our first part, ठीक है, तो क्या करेंगे, 1 digit will make some cases. How many 1 digit numbers we can make? For one place I have 4 options, right? 1, 3, 5 and 7, I have 4 options. For a 2 digit number I will make 2 blanks. Now at the first place maybe I have 4 options and the second place I'll have 3 options, right? So in total I will have 12 numbers that can be formed. 2 digit numbers, right? There could be 12 2 digit numbers that can be formed from 1, 3, 5, 7. And coming to 3 digit, this time 4 options in the first place, since no digit is repeated, second पे 3 and third पे 2 options बचेंगे. So again 4 into 3 into 2, that's 24 numbers, right? And lastly 4 digit है, so you can make 4 digit number as well. So that will be again 4 into 3 into 2 into 1, जो आप 4 factorial भी कर सकते हो direct, right? That's again 24. So first of all let's understand what is the answer to the first question. इसके तो एक ही method है, right? So that would be 12 plus 4 is 16 plus 24 is 40 plus 24 is 64. So guys, first part is clear, but very much easy and clear that 64 numbers can be formed using the digits 1, 3, 5 and 7. Okay, let me get a calculator also for the further portion. Okay, so ये part तो बच्चों I think सबको समझ में आता है, right? This is quite easy. But अब जो next part है उसमें क्या बोला जा रहा है? See this second part. What does this term means? Sigma of n where n belongs to S. मतलब उन सब एलिमेंट्स का सम करना है जो एलिमेंट्स S के अंदर बिलोंग करते हैं. And we have just found that there are 64 such elements. कि उस सेट S के अंदर there are 64 numbers, such numbers. तो हमें सेकेंड पार्ट में क्या पूछा जा रहा है, उन सब का सम.
उन 64 नंबर्स का मुझे सम बताना है कि कितना होगा, राइट? दैट इज व्हाट दिस पार्ट सेज। तो अब हम ये देखते हैं कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसको द स्टैंडर्ड वे, जो मे भी आपने पढ़ा हो कभी, ठीक है? सो गाइस विल स्टार्ट विद द डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है? देखो बच्चे, तो सबसे पहले सम ऑफ द डिजिट्स, सम ऑफ सच नंबर्स विच आर वन डिजिट नंबर्स। तो वन डिजिट नंबर में बच्चे एक ही प्लेस है, तो वहां पे 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा। सो आई विल हैव टू ऐड अप 1 + 3 + 5 + 7, और उस प्लेस पे एक डिजिट एक ही बार आएगा, राइट? सो द सम इज 16 फर्स्ट ऑफ ऑल। ये तो सिंपल है ना? वन डिजिट नंबर्स कौन कौन से हैं? सिर्फ 1, 3, 5 एंड 7, सिंपल। अब टू डिजिट पे आके मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाहूंगा। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? टू डिजिट नंबर है, राइट? अब कोई भी डिजिट एक प्लेस पे कितनी बार आता है, हमें ये सोचना पड़ेगा। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। हमें बच्चों सबसे पहले एक बात ये समझनी है कि 1, 3, 5, 7 में कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पे, है ना? इन द सेंस दे आर सिमेट्रिक, कि जितनी बार 1 आएगा फर्स्ट प्लेस पे, लेट्स से 1 फर्स्ट प्लेस पे कितनी बार आएगा, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ। फर्स्ट प्लेस पे लेट्स से आपने 1 डाल दिया, एंड हाउ मेनी नंबर्स विल बी देयर, हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स विल बी देयर जिनमें फर्स्ट डिजिट 1 है? दैट इज 3, है ना? क्योंकि अभी फर्स्ट प्लेस पे अगर आपने 1 फिक्स कर दिया तो सेकंड प्लेस पे क्या आ सकता है? 3, 5 और 7, है ना? सिमिलरली अगर आपने फर्स्ट प्लेस पे 3 फिक्स कर दिया, आई गिव यू एन एग्जांपल, फर्स्ट प्लेस पे 3 फिक्स कर दिया, तो अब सेकंड प्लेस पे 1, 5 या 7 आ सकता है, राइट? सो 3 केसेस ईच टाइम, ठीक है ना? आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू गाइज, कि जब आप इन दैट सेंस दे आर सिमेट्रिक, दैट अगर जितने वेज जितनी बार 1 आएगा फर्स्ट प्लेस पे, उतनी ही बार 3, 5 और 7 भी आएंगे, राइट? एंड सिमिलरली जितनी बार 1 सेकंड प्लेस पे आएगा, मतलब यूनिट्स प्लेस पे आएगा, उतनी बार 3, 5 और 7 भी आएंगे। इन दैट वे द काउंटिंग विल बी सिमेट्रिक, ठीक है? तो मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं कि कैसे सोचना है। देखो गाइस, अब क्या करते हैं, विल काउंट हाउ मेनी टाइम्स 1 कम्स एट 10th प्लेस। उतनी बार 3 आएगा, उतनी ही बार 5 आएगा, उतनी बार 7 आएगा, करेक्ट? ठीक है? तो बच्चे ये काउंट करते हैं, हाउ मेनी टाइम्स डज 1 कम एट द फर्स्ट प्लेस? 3 टाइम्स। कितनी? क्योंकि सेकंड प्लेस पे 3 ऑप्शंस हैं, है ना? सो और इन दोज केसेस बच्चे 1 फर्स्ट प्लेस पे आप क्या लिखते हो? उसको 1 × 10 लिखते हो ना, 10th प्लेस पे, क्योंकि और वो कितनी बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है, करेक्ट? ठीक है ना? सो 1 इज कमिंग एट द 10th प्लेस 3 टाइम्स। सिमिलरली अगर मैं यूनिट्स प्लेस पे देखूं, 1 अगर फिक्स कर रहा हूं, तो यहां पे 3, 5 और 7 आएगा, उसमें भी इसका मतलब 1 यूनिट्स प्लेस पे कितनी बार आ रहा है? 3 टाइम्स। इन दैट केस आप 1 × 3 कर दोगे, सिंपल, करेक्ट? तो इसमें एग्जैक्टली हुआ क्या, 1 अगर आप एक तरह से कॉमन लेते हो, 3 भी कॉमन आ गया, यू आर डूइंग 10 + 1 11 × 3 बन गया, और यू कैन से 3 × 11, है ना? फिलहाल अभी मैंने सिर्फ 1 को फिक्स किया, मैं आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, फिर हम बाकी के लिए भी करते हैं। तो बच्चों अभी मैंने सिर्फ ये देखा कि 1 कितनी बार यूनिट्स प्लेस पे आता है, कितनी बार 10th प्लेस पे आता है, एंड अकॉर्डिंगली व्हाट इज द सम ऑफ दोज नंबर्स एटलीस्ट। अभी सिर्फ उन नंबर्स के हिसाब से सोच रहा हूं, ठीक है? आउट ऑफ दीज 12 नंबर्स, हमने 2 डिजिट नंबर्स देखे थे, कितने? 12 है। उसमें उन 12 नंबर्स में एट ईच प्लेस एक डिजिट कितनी बार आता है? 3 टाइम्स आता है। देखो, क्योंकि 1 फर्स्ट प्लेस पे कितनी बार आ रहा है? 3 टाइम्स आ रहा है। 10th प्लेस पे 3 टाइम्स आ रहा है। तो बच्चों अब हम यहां पे समझना क्या है, देखो सिमिलरली अब आप ये सोचो 10th प्लेस पे क्या क्या नंबर्स आएंगे, हमें ये समझना है। 10th प्लेस पे 1, 3, 5 एंड 7 चारों डिजिट आएंगे और सेम नंबर ऑफ टाइम्स आएंगे, राइट? मतलब फर्स्ट प्लेस पे 1, 3, 5 एंड 7 चारों डिजिट कितनी कितनी बार आएंगे? 3 टाइम्स, दे विल अकर 3 टाइम्स, है ना? तो उन सब नंबर्स का अगर मैं सिर्फ अभी 10th डिजिट का सम करता हूं लेट्स से, तो क्या होगा वो? आई विल से 1 कितनी बार आ रहा है? 3 टाइम्स आ रहा है, और इंटू 10 करना है बिकॉज ऑफ 10th प्लेस, ठीक है? सिमिलरली 3 कितनी बार आएगा? 3 टाइम्स आएगा, है ना? इंटू 10th प्लेस। 5 कितनी बार आएगा? वो भी 3 बार टाइम्स आएगा इंटू 10th प्लेस। एंड 7 कितनी बार आएगा? 3 टाइम्स आएगा, और दैट इज ऑल्सो इंटू 10th प्लेस। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो सम ऑफ डिजिट्स हमने फर्स्ट 1 डिजिट में फाइंड किया था 16, इफ यू ऐड देम ऑल अप, ठीक है, आपको क्या मिलेगा?
3 into 10 कॉमन आ रहा है, राइट? 3 into 10 you'll get common, and 1 plus 3 plus 5 into 7. That is what I wanted to tell you by symmetry. क्योंकि हर डिजिट अपनी एक प्लेस पे, किसी एक प्लेस पे इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स अकर करेंगे, राइट? बिकॉज एवरीथिंग इज सिमेट्रिक इन दिस केस. ऐसा कोई तो है नहीं कि बीच में 0 डिजिट आ गया हमारे पास, है ना, कि प्रॉब्लम क्रिएट करे. सो यू कैन सी हियर आपके पास क्या बना, 16 into 3 into 10. ओके, ये 10 क्यों आ रहा है? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट टेंस प्लेस. नाउ वेरी मच सिमिलरली अगर आप यहाँ पे वंस प्लेस की बात करते, 1 3 5 7 इक्वल टाइम्स आते, वो भी 3 टाइम्स ही आना था, राइट? नाउ आई कैन मेक इट, राइट इट डायरेक्टली. क्या आएगा वहां पे? क्योंकि 1 3 5 7 इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स आएंगे, 3 टाइम्स आएंगे, राइट? सम विल बी 16 into 3 into 1. रादर अब मैं एक और फॉर्मूला आपको क्रिएट करके दिखाता हूं. इनको अगर आप ऐड करते हो, ये दोनों ऐड होने हैं ना, नंबर्स का सम करना है. सो व्हाट विल इट फॉर्म? 16 into 3 will be common into 10 plus 1. So that will give you 16 into 3 into 11. Okay, let me scroll it up. So 16 into 3 into 11 बन जाएगा बच्चों, ठीक है? So what is happening here is 2 digit number था, क्योंकि every digit is occurring at a place 3 times. उसको आप फिक्स करते हो तो बाकी जगह देखोगे ना कितने केसेस बनते हैं. And 10 plus 1 11, क्योंकि tens place plus units place. So this will become 16 into 3 into 11. So I'll write it again. So 2 digit numbers का sum कितना आ रहा है? That's coming out to be 16 into 3 into 11. That is how much? 48 into 11. So 528. Okay, that is one thing. Now very much similarly बच्चों, अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है, सो 3 डिजिट नंबर्स कितने बनेंगे? देखो, लेट मी गिव यू एन आइडिया, ठीक है? कोई भी डिजिट को अगर आप फिक्स करते हो किसी एक प्लेस पे, राइट? लेट्स से यू फिक्स्ड 1 एट द फर्स्ट प्लेस. अब टोटल कितनी बार, मतलब ऐसे कितने 3 डिजिट नंबर्स होंगे जिनमें फर्स्ट प्लेस पे 1 आएगा? हाउ टू काउंट इट? अब अगर आपने 1 फिक्स कर दिया है ना, सो द सेकेंड प्लेस हैज 3 ऑप्शंस एंड द लास्ट प्लेस हैज 2 ऑप्शंस, तो टोटल में 6 टाइम्स आएगा, राइट? अदरवाइज वन वे वुड बी, एक तरीका तो ये समझने का, और एक तरीका क्या है, ये आपने 24 फाइंड किया था ना, उसका बाय 4 कर दो ना, सिमेट्री है. हर नंबर अपनी जगह पे कितनी बार आएगा, किसी एक प्लेस पे कितनी बार आएगा, बाय 4 कर दो उसको, क्योंकि देयर आर 4 डिजिट्स, है ना, तो 6 टाइम्स, ठीक है? सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर. अब बच्चों अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है 2 डिजिट वाले से, अब सोचो 1 फर्स्ट प्लेस पे कितनी बार आ रहा है? 6 टाइम्स आ रहा है. 3 भी 6 टाइम्स आएगा, 5 भी 6 टाइम्स आएगा, 7 भी 6 टाइम्स आएगा. सो बेसिकली आप वंस यूनिट्स, ये हंड्रेड्स प्लेस है, तो इसके लिए आप क्या करोगे? यू विल से 1 3 5 7 चारों डिजिट कितनी बार आ रहे हैं? 6 टाइम्स ईच. तो जब आप ऐड करोगे, सो 4 टाइम्स 6 टाइम्स विल बी कॉमन, 6 विल बी कॉमन. सो यू विल गेट 1 plus 3 plus 5 plus 7, है ना, into 6 into हंड्रेड्स प्लेस, है ना? So same thing will happen for, अगर आप मिडल टर्म पे देख रहे हो, so you'll add again the same thing, 16 into 6 into 10 plus 16 into 6 into 1. Same thing for units place, ठीक है? ये 1 10 और 100 तो यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस और हंड्रेड्स प्लेस के लिए आ रहे हैं, राइट? सो आपको यहां से एक आइडिया लग गया. दिस नंबर कम्स टू 16 into 6 आप कॉमन लिख सकते हो, देन यू विल हैव 100 plus 10 plus 1. आई थिंक आप अब नोटिस कर रहे हो पैटर्न क्या बनता है, 16 into 6 into 111, राइट? ये मैं चेक कर लेता हूं जल्दी से. आई यूज अ कैलकुलेटर फॉर दिस. सो 16 into 6 into 111, दैट इज 10,656, ठीक है? सो दैट इज दिस. सो बच्चों आपको एक आइडिया लग रहा है कि क्या बन पा रहा है, द नंबर ऑफ टाइम्स सम ऑफ द डिजिट्स करना है. एक तो आपको स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट क्या बना सकते हो, सम ऑफ द डिजिट्स इज हैपनिंग, है ना, एंड इफ अ नंबर इज फिक्स्ड एट सम प्लेस, ठीक है? लेट्स से आपने कोई एक फिक्स किया, तो बाकी दो पे कितने केसेस बनते हैं वो आप फाइंड कर सकते हो. दैट इज 6 इन दिस केस इनटू 111. इफ इट वाज 3 डिजिट नंबर, 100 plus 10 plus 1. अगर 2 डिजिट था तो दैट वाज 10 plus 1. सो यू कैन गेट एन आइडिया. तो 4 डिजिट के लिए मैं डायरेक्टली लिखूंगा. आई होप यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट. तो 4 डिजिट नंबर जब होगा बच्चों, है ना, तो अगर आपने 1 कोई नंबर एक जगह पे फिक्स कर दिया, किसी भी जगह पे, लेट्स से यू फिक्स्ड 1 हियर, है ना, तो बाकी कितने नंबर बन पा रहे हैं? फिर से 6 बन पाएंगे, 3 into 2 into 1, है ना?
So that means a number will be fixed at its place 6 times again, है ना? That means again sum of the digits is 16 into 6, because अगर कोई डिजिट है किसी एक प्लेस पे कितनी बार आ रहा है, 6 टाइम्स आ रहा है, into 1111, वो 1000 प्लस 10 हंड्रेड्स प्लस 10 प्लस डिजिट प्लस 1 बन के आ जाएगा. So that should be your answer, right? Taking a hint from the previous things, यहाँ से ये बन जाएगा. So let's see what will this expression be. 16 into 6 into 1111. तो बच्चों यहाँ से आएगा आपके पास 106656. Now what I have to do is add up all these numbers. क्या क्या सम आया था? One digit was 16. Let me show you. One digits का 16, two digit का 528, three digit का 10,656, and this is finally 1,06,656. Correct? So the sum is 16 plus 528 plus 10,656 plus 1,06,656. Okay, and that will come out to be, let me show you, this plus 528 plus 16. So this will give you 117,856. Okay, so that is your answer. Sum of all those 64 numbers is this much. Okay, so that is the standard method, and you can see here कितना lengthy हो रहा है. ठीक है, it's becoming a lengthy. Yes, question is a bit lengthy in that sense, है ना? आप देख पा रहे हो यहाँ पे. So second part of the question is quite lengthy. Now let me talk about कि कैसे होगा. Now what is the second method that I was talking about कि थोड़ा दिमाग लगाओगे, ऑब्जर्व करोगे. So what is the concept here, right? So let me discuss that now. Okay, let me come back here. This is method 2. Okay, so guys, अब बच्चों हम क्या देखते हैं, यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करते हैं हम, right? What is the thing to observe here? So guys, देखो वन डिजिट की बात करते हैं. वन डिजिट नंबर्स, ऑल्दो वो सीधा निकाल लिया हमने आंसर उसका, बट थिंक अबाउट दिस. वन डिजिट नंबर में वी कैन मेक पेयर्स. क्या पेयर्स बनेंगे? 1 और 7 का एंड 3 और 5 का. दिस इज ओनली हैपनिंग बिकॉज इट्स फॉर्मिंग एन एपी. यूजफुल हो रहा है उससे. सो द सम ऑफ दीज टू नंबर्स इज 8. 5 and 3 इज ऑल्सो 8, है ना? तो जितने वन डिजिट नंबर्स बन रहे थे, कितने बन रहे थे? 4 बन रहे थे. एंड यू आर मेकिंग पेयर्स आउट ऑफ दोज 4 नंबर्स, राइट? दो दो के पेयर बना रहे हो. सो हाउ मेनी पेयर्स विल बी देयर? 2 पेयर्स, राइट? तो उनका सम क्या आएगा? बिकॉज ईच पेयर इज हैविंग अ सम ऑफ 8. तो 8 इंटू नंबर ऑफ पेयर्स विल बी टोटल नंबर ऑफ नंबर्स दैट कुड बी फॉर्म्ड बाय 2, राइट? तो ये तो 16 आ रहा है, सिंपल है. Now I'll talk about 2 digit numbers. It is really interesting in this particular case. 2 digits हैं बच्चे. In this thing, you can make pairs of such numbers. See, कोई भी 2 numbers उठाते हैं. Let's say first number is 13, right? So if it is 1 and 3, 1 को मैच करने के लिए 7 रखते हैं, 3 को मैच करने के लिए 5 रखते हैं. What I can observe here is 13 and 75 are 2 of such numbers ना, 2 digit number में. तो 13 और 75 का सम कितना आ रहा है? That's 88. हर नंबर के लिए एक नंबर ऐसा होगा so that the sum is coming out to be 88. Because जो भी 2 डिजिट आप यूज करते हो, ठीक है, you can use such digits after that, उसका corresponding पेयर. लेकिन देखो 1 का पेयर क्या है? 7 है. 3 का पेयर 5 है. तो जो भी डिजिट जिस प्लेस पे आता है उसका पेयर आप सेकेंड नंबर में यूज कर लो. लाइक आई गिव यू एन एग्जांपल. लेट्स से योर नंबर इज 17, है ना? 1 का पेयर क्या है? 7 है. तो 7 यहाँ पे रखो. 7 का पेयर क्या है? 1 है. तो 1 यहाँ पे रखो. So again 17 and 71 also give you the sum of 88. बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये चारों नंबर एपी में हर बार हम 8 आ जाता है. कोई भी 2 का सम, फर्स्ट लास्ट का सम, सेकंड थर्ड का सम 8 आता है. तो हम क्या कर रहे हैं, कोई भी आप एक नंबर फॉर्म करते हो, देयर विल बी सच नंबर इन दैट सेट ओनली, सो दैट जब आप उसको ऐड करते हो उसके साथ में, दैट विल गिव यू द सम 8 and 8 एट बोथ द प्लेसेस. ठीक है, आप सोच के देख सकते हो. कोई भी नंबर क्रिएट करो, यू कैन फॉर्म इट्स अदर पेयर. एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ. चलो मैं take some number, let's say 35. 35 will be one of the number out of these two, है ना? 35 बन रहा है. अब 3 का पेयर क्या है? 5 था. तो 5 लिखेंगे पहले. सेकंड डिजिट पे 5 है तो उसका पेयर 3. So you can see easily 35 and 53 form the sum of 88.
ठीक है, इनफ एग्जांपल्स दे दिए मैंने आपको, आप कोई भी दो ट्राई कर सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा, करेक्ट। Now let's see how much is the counting then. What is the sum of all these digits? 88 आ रहा है. Every time I get a pair, the sum is 88. So 88, and how many pairs are there? ठीक है, for every two digit sum of two digit numbers, pair का 88 आ रहा है. And how many pairs will be there? जितने हमारे पास total number of numbers थे, कितने numbers थे हमारे पास? 12 थे. So there will be 6 pairs obviously, right? So 88 into 12 by 2. नंबर ऑफ पेयर्स, करेक्ट, ये बन जाएगा. सो दैट इज 88 इंटू 6. ओके, दैट इज सेकेंड 2 डिजिट नंबर. अभी क्या करते हैं, 3 डिजिट पे आता हूं. सो बच्चों ये सेम चीज होगी 3 डिजिट में भी, क्योंकि पेयरिंग बन रखी है. 1 की 7 के साथ है, 3 की 5 के साथ है पेयरिंग, राइट. सो जब 3 डिजिट नंबर आप कोई भी एक सिलेक्ट करते हो, आई गिव यू अगेन एन एग्जांपल. ठीक है, एग्जांपल में दिखा रहा हूं. लेट्स से यू सिलेक्टेड 135. 135 इज वन ऑफ द नंबर, राइट. अब फर्स्ट प्लेस पे 1 है, उसका पेयर क्या है? 7 है. सेकंड प्लेस पे 3 है, उसका नंबर क्या है? उसका पेयरिंग है 5 के साथ. सो 7 5, और 5 का पेयर क्या है? 3 है. सो 753 एंड 135. जब आप इनको ऐड करोगे, इट विल गिव यू द सम ऑफ 888, है ना. इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है. सो एवरी टाइम दिस विल हैपन, और 888 आपका आता जाएगा, है ना. आई थिंक यू हैव गॉट द कॉन्सेप्ट नाउ, ग्रैस्प द कॉन्सेप्ट. तो अब 888 बच्चों कितनी बार आएगा? जितने पेयर्स होंगे. पेयर्स कितने बनेंगे? टोटल नंबर ऑफ नंबर्स जितने बनते रहे थे, दैट वाज 24 by 2, करेक्ट. तो दैट इज 888 मल्टीप्लाई बाय 12. एंड लास्टली फॉर 4 डिजिट नंबर्स, यू कैन गेस नाउ कि क्या बनेगा वो 4 डिजिट्स का सम. 8888 आ रहा है ना हर प्लेस पे. सो दैट विल बी 8888 into again number of pairs कितने होंगे? 24 by 2, that is 12. So 8888 into 12. So these are the 4 numbers that you have to add. So sum is 16 plus 88 into 6 plus 888 into 12 plus 8888 into 12. And बच्चों, and yes, let me do it on the calculator again. ठीक है, 8888 into 12 plus 888 into 12 plus 88 into 6 plus 16. So you can see बच्चों, the answer is again exactly the same, 117 856. Okay, you can see it on the calculator here if you need. Okay, although I don't think calculator के अंदर आएगा, but yes, I'm only using it for the calculation portions. So 1,17,856. So you can see here कि दोनों केसेस में सेम बन रहा है आंसर. एंड मेथड 2 इज क्वाइट इजी कंपैरेटिवली इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो. सोचने में भी डिफिकल्ट नहीं है उतना, वेयरएज इट माइट बी कि आपको थोड़ा डिफिकल्टी लेवल लगा हो समझने में इन द फर्स्ट मेथड, राइट. सो दैट इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि अलग एंगल से अगर हम क्वेश्चन को सोचते हैं तो क्या मीनिंग बनेगा, राइट. ओके, आई होप इट इज यूजफुल टू यू गाइस, मजा आया हो. ठीक है, okay, let's see one more question. ठीक है, just like that. Okay, I'll tell you this thing also. Again, easy लगेगा ये आपको क्वेश्चन काफी, but the point is about the approach. Okay, different angle से कैसे सोचते हैं उसको. So guys, the question is how many numbers less than 1000, natural numbers की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, are there sum of whose digits is 21. So guys, सबसे पहले sum of digits is 21, right? 1 डिजिट नंबर नहीं हो सकता है, 2 डिजिट नंबर भी नहीं हो सकता है, बिकॉज एक्चुअली 2 डिजिट नंबर इज द मैक्सिमम सम ऑफ द डिजिट्स कुड बी 18 इफ देयर आर 9 and 9, राइट. सो 3 डिजिट नंबर ही ढूंढने एक्चुअली हमें. द क्वेश्चन बेसिकली वांट्स अस टू फाइंड 3 डिजिट नंबर्स, सम ऑफ हुज डिजिट्स इज 21. ओके, सो आई गो थ्रू विद मेथड 1 फर्स्ट, जो जनरली आप सोचोगे मे बी एग्जाम में, एंड दैट इज ऑल्सो नॉट दैट लेंथी, बट यस, मैं उससे भी छोटा मेथड बताऊंगा आपको. ठीक है, a different angle to think about. ठीक है, यहाँ पे क्योंकि constraint क्या है ना बच्चे, let's say the number n is having 3 digits a b c, where there is a constraint that each of the digits a is ranging from 0 to 9, right. Let me write it like this only. Each of the digits a b and c are ranging from 0 to 9 because digits है वो, right. Although yes, कोई भी एक digit 0 नहीं हो सकता है, because sum is 21 ना. So but guys, अब अगर आप ये सोचो
ए की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? तीनों में से एक भी जीरो तो हो नहीं सकता, दैट इज यूजफुल फॉर अस। तीनों में से एबीसी में कोई भी जीरो नहीं हो सकता, बिकॉज इफ वन डिजिट इज जीरो द अदर टू कैन नॉट एड अप टू 21, राइट? मैक्सिमम सम तो 18 हो सकता है ना बाकी दो का। सो आप ये सोचो, इफ द टू ऑफ देम आर मैक्सिमम, बी एंड सी आर लेट्स से मैक्सिमम, है ना, 9 एंड 9, देन ए का मिनिमम वैल्यू क्या हो पाएगा? लाइक ए की वैल्यू क्या होगी तब? 3 होगी, राइट? इफ आई सेट बी एंड सी एज 9 ईच, ठीक है, तो ए की वैल्यू 3 होगी, मतलब ए की वैल्यू 3 से छोटी हो ही नहीं सकती, पक्का है ना? द डिजिट ए कैन नॉट बी लेसर देन 3, मतलब 1 या 2 नहीं हो सकता है, 0 1 या 2 नहीं हो सकता है, बिकॉज इन ऑल दीज 3 केसेस सम ऑफ बी एंड सी विल एक्सीड 18, ठीक है, और वो हो नहीं सकता। सो आई विल स्टार्ट मेकिंग केसेस। ए को 3 रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इक्वेशन डू आई हैव? a प्लस बी प्लस सी इज 21। तो इसमें आप बेगर पॉइंट मेथड नहीं लगा देना कहीं गलती से, ठीक है, बिकॉज देर आर सम बाउंड्स ऑन देम कि a की क्या वैल्यूज हैं, जरूरी नहीं है वो सारी वैल्यूज अटेन कर सके, राइट? सो बेगर पॉइंट मेथड आप सीधा नहीं लगा सकते हो, बट आई विल बी मेकिंग केसेस। इट इज क्वाइट इजी ऑल्सो। a को 3 से स्टार्ट कर सकते हैं पुट करना, है ना? a की मिनिमम वैल्यू विल बी 3, उससे छोटा नहीं डाल सकता हूँ। और जब a को मैं 3 रखता हूँ, माई इक्वेशन विल कन्वर्ट टू b प्लस सी इक्वल टू 18। और बच्चे, हाउ मेनी वेज कैन आई गिव द वैल्यूज b प्लस सी टू बी 18? वेरी सिंपल, एक फिक्स वे है, 9 एंड 9, ओनली केस वन, देयर इज वन वे टू डिस्ट्रीब्यूट इट टू देम। अच्छा, अब a को 4 डालते हैं, देन b प्लस सी इज इक्वल टू 17 आ जाएगा, करेक्ट? हाँ, अब कितने वेज में मैं इनको वैल्यूज दे सकता हूँ 17? कैसे बना सकता हूँ? देखो, इट्स वेरी इजी। अगर आप b को कोई वैल्यू फिक्स करते हो, c ऑटोमेटिकली विल गेट फिक्स्ड, करेक्ट? तो मुझे b के बारे में सोचना है कि b की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं, पुट कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, फिजिबल है जो। सो इफ यू थिंक अबाउट इट, b कैन बी 9, तो c अपने आप 8 हो जाएगा। इफ b इज 8 देन c विल बिकम 9, और b को 7 नहीं डाल सकते हो, राइट? c कैन नॉट बी 10, सो देयर आर ओनली 2 वैल्यूज ऑफ b, दैट इज 9 एंड 8, ठीक है? अब आप देख रहे हो धीरे धीरे वो वैल्यूज बढ़ती जाएंगी। a को अगर आप 5 रखते हो, देन b प्लस सी विल गिव यू 16, ठीक है? अब b की वैल्यूज क्या हो सकती हैं? 9, इफ b इज 9 देन c इज 7, b इज 8 देन c इज 8, इफ b इज 7 c इज 9, बस वहां पे रुकना पड़ेगा आपको, है ना? क्योंकि उससे छोटा b कर नहीं सकते हो, c 9 से एक्सीड हो जाएगा। सो देयर आर 3 वैल्यूज। सो बच्चों, आप देख पा रहे होगे देयर इज अ पैटर्न फॉर्मिंग। मैं लास्ट लिख के दिखाता हूँ, b प्लस सी इज 15, देन देयर विल बी 4 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ b विच आर पॉसिबल। सो आप देख रहे हो a की वैल्यू 1 1 से बढ़ रही है, b प्लस सी की वैल्यू 1 1 से कम हो रही है, एंड कॉरेस्पॉन्डिंगली द नंबर ऑफ केसेस दैट कैन बी फॉर्म वो 1 1 से बढ़ रहा है। सो गोइंग ऑन लाइक दिस, a की वैल्यू 9 तक जाओगे आप, देन b प्लस सी विल बी 12, करेक्ट? एंड इन हाउ व्हाट वैल्यूज कैन यू पुट फॉर b? b की वैल्यूज अब आप 3 से शुरू करोगे एंड 9 तक जा सकते हो, दैट विल गिव यू 7 वैल्यूज, राइट? 7 केसेस पॉसिबल हैं b की वैल्यूज के। b कैन बी 3 4 5 6 7 8 9, सो 7 केसेस। तो बच्चों, ये केसेस बन रहे हैं आपके पास, यू कैन ऐड देम ऑल अप नाउ, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू 7। सो 1 से 7 तक का सम, दैट इज 7 इंटू n प्लस 1 बाई 2, करेक्ट? दैट इज 28। सो देयर आर 28 सच नंबर्स सच दैट जिनका सम क्या होगा? सम ऑफ उस डिजिट्स इज 21। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। सिंपल है। अब मैं इस क्वेश्चन का आपको अलग एंगल बताता हूं सोचने का, क्या एंगल से सोच सकते हैं विच विल मेक इट इजियर। यहाँ पे प्रॉब्लम क्यों आ रही थी? बिकॉज देयर वॉज एन अपर बाउंड, राइट? एबीसी के ऊपर एक अपर बाउंड था जिसके कारण हम अटक गए थे और बेगर कॉइन मेथड हम नहीं यूज कर सकते थे, राइट? बट गाइस, एक चीज सोचो, अगर मैं ऐसे सोचूं, मुझे पता है 3 नंबर्स का मैक्सिमम सम कितना हो सकता है? 27, करेक्ट? ठीक है, तीनों को एबीसी को अगर मैं 999 रख दूं तो सम क्या आएगा? 27 आ जाएगा। बट व्हाट कैन आई ऑब्जर्व हियर इज, अगर मैं ऐसा सोचने की बजाय कि एबीसी की वैल्यूज क्या फिक्स करूं कि सम 21 आ जाए, अगर मैं ऐसे सोचूं कि तीनों की वैल्यू 9 तो फिक्स कर दी एक तरह से, तो तीनों में से कुछ कुछ मुझे चीजें निकालनी है, सबट्रैक्ट करनी है ना? तो कितना नंबर टोटल सबट्रैक्ट करना है मुझे तीनों में से एबीसी को? कुछ नंबर्स ऐसे सबट्रैक्ट करने हैं सो दैट 27 से 21 रह जाए सम। तो मुझे टोटल ऑफ 6 सबट्रैक्ट करना है 3 नंबर्स में से, ऐसा सोच सकता हूं। अनदर वे टू अंडरस्टैंड दिस इज आई कैन सब्स्टिट्यूट ऑल्सो, आप इक्वेशन वाइज भी समझ सकते हो। ए को मैं क्या सोच रहा हूं? 9 माइनस ए डैश सोच रहा हूं,
बी को क्या सोच रहा हूँ, दैट्स ऑल्सो 9 माइनस बी डैश, और सी को भी लिखता हूँ 9 माइनस सी डैश, वेर इन दिस पर्टिकुलर केस ऑल्सो ए बी सी ए डैश बी डैश सी डैश के ऊपर भी कंस्ट्रेंट होगा ना, वो 0 से 9 के बीच में ही रहेंगे, है ना। जब 0 होंगे तीनों तो मैक्सिमम हो जाएंगे 9 9 9 एक तरह से, और 9 हो जाएंगे तो देन दैट मीन्स सम वैल्यू विल बी 0, राइट। सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ बस। तो इफ आई पुट इट बैक इन दिस आई विल गेट 9 माइनस ए डैश प्लस 9 माइनस बी डैश प्लस 9 माइनस सी डैश इक्वल टू 21, ठीक है। सो क्या बनेगा, a डैश b डैश c डैश को यू टेक इट टू द अदर साइड, यू विल गेट a डैश प्लस b डैश प्लस c डैश इक्वल टू, ओके लेट मी राइट हियर, a डैश प्लस b डैश प्लस c डैश इक्वल टू 27 माइनस 21 व्हिच इज 6, ठीक है ना। तो जो मैं आपको बताना चाह रहा था, आई होप यू गेट टू अंडरस्टैंड दिस। सो व्हाट आर a डैश b डैश c डैश, एक तरह से वो क्वांटिटीज हैं कि 9 में से मैं कितना सब्ट्रैक्ट कर दूं फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर्स a b c सो दैट द सम कम्स डाउन टू 21। मैंने एक बार तीनों को मैक्सिमम डाल दिया 999, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन ये बन गया था, मुझे ऐसे चेंज करना है उन नंबर्स को, कुछ कुछ सब्ट्रैक्ट करना है उन नंबर्स में से, सो दैट द सम रिड्यूसेस टू 21, राइट। तो टोटल कितना सब्ट्रैक्ट करना है, 6 सब्ट्रैक्ट करना है, राइट। और इसमें मेरे पास कोई अपर बाउंड का प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज 3 नंबर्स का सम 6 है और अपर बाउंड तो 9 पे था, तो 9 तो वैसे भी कोई हो नहीं सकता ना, ठीक है। नाउ आई कैन यूज बेगर कॉइन मेथड इन दिस। अब मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, देयर इज नो कंस्ट्रेंट ऑन a डैश b डैश c डैश, वो 0 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ऑब्वियसली 6 को एक्सीड नहीं कर सकते, वो अपने आप इक्वेशन इज टेकिंग केयर ऑफ इट। तो अब आप अगर आप इस पे बच्चे बेगर कॉइन मेथड यूज करते हो, लेट्स सी व्हाट विल बी द आंसर। a डैश प्लस b डैश प्लस c डैश इज 6, सो यू हैव टू डिवाइड 6 among 3 persons, एक तरह से ना, 6 coins among 3 beggars, so 6 stars हैं आपके पास या फिर 6 coins हैं, and how many partitions will you put, 2 partitions, since आपको 3 में डिवाइड करना है, so formula becomes 8c2, right। number of objects total कितने हो गए, 6 coins plus 2 partitions, 2 bars, c2, right, उनके लिए जगह ढूंढ रहे हो, so 8c2 which comes down to 8 into 7 by 2 which is again 28। तो आप देख सकते हो विद जस्ट दिस मच अंडरस्टैंडिंग, ये तो आपको लिखने के लिए बता दिया मैंने, बट विद जस्ट दिस मच अंडरस्टैंडिंग कि आपको कुछ कुछ सब्ट्रैक्ट करना है रादर 3 नंबर्स में से टू मेक द सम कम डाउन टू 21, तो तब आपके ऊपर कोई कंस्ट्रेंट ही नहीं बच रहा है, देन यू कैन इजीली यूज बेगर कॉइन मेथड एंड फाइंड द आंसर टू बी 28 डायरेक्टली। तो ये था थोड़ा सा इस क्वेश्चन के लिए डिफरेंट एंगल जो मैं बात कर रहा था आपके साथ। सो आप ट्राई कर सकते हो जनरली क्वेश्चंस के साथ कि डिफरेंट एंगल से सोचना फॉर सच क्वेश्चंस व्हिच आर वेरी लेंथी, एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि हर बार कोई एंगल मिलेगा आपको, बट इट्स वर्थ फाइंडिंग आउट। ट्राई करोगे तो कभी ना कभी मिलेंगे भी और आपको कॉन्फिडेंस फील होगा और मजा भी आएगा। ओके, आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस सेशन। ओके, विल सी यू अगेन समटाइम इन द यूट्यूब सेशन। ओके, आई होप सबको समझ में आया, इफ नॉट यू कैन ऑब्वियसली रीप्ले द सेशन। ओके, दैट इज द बेनिफिट ऑफ दिस। ठीक है, थैंक यू गाइज, all the best for the IUCAM exam. Okay, all the best and keep working hard. Bye bye, thank you.